Physics grade 9, chapter number 4, very important topic, resolution of forces. Before starting the topic, you should know about ratios, trigonometric ratios. It's a simple right angle triangle whose angle is theta. A, B, C are its vertices. So angle opposite side called perpendicular. Right angle opposite side, suppose it's a right angle, hypotenuse, and the third one is base. So there are number of ratios, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं यहाँ पे 3 trigonometric ratios बताऊंगा. Number 1 sin theta, number 2 cosine, जिसको नॉर्मली हम cos theta के नाम से कहते हैं, and third one is tangent theta. Okay, so how to remember these ratios? इसके लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक सिंपल सेंटेंस याद करवाता हूं, वो प्लीज आपने भी नोट कर लेना है. Some people have curly brown hairs through proper brushing. My dear students, ये सेंटेंस आपको, इंग्लिश तो नहीं मैं आपको करवा रहा, मैं सिर्फ फिजिक्स करवा रहा हूं. ये आपको रेशो याद करने में इंतहाई फ्रूटफुल आपके लिए फायदेमंद होगा. सम, साइन, पर पीपल हैव, इसको फर्स्ट लेटर को आपने प्रोमिनेंट करना है. फर्स्ट लेटर अभी देखिए रेशियो खुद ब खुद बन जाएंगी. साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है. करली कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. थ्रू टेंजेंट थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर and base. My dear students, if you know about these ratios, then you can easily understand the resolution of forces, because चूंकि हम एक components find करने हैं और components trigonometric ratios के बगैर calculate नहीं हो सकते. इसकी magnitude find करेंगे और direction find करेंगे. ये इसका first step था. मैं दोबारा repeat कर रहा हूं, ये sentence please note कर लें. अक्सर स्टूडेंट्स ये रेशियोज के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं जो कि गलत, कभी कॉस की रेशियो साइन में मिक्स कर देते हैं, टेंजेंट की फला. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. रेशियोज हैं ये, इसलिए इसका नाम क्या है? Metric ratios. These are called trigonometric ratios. मैथ में भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन जो कि ये फिजिक्स का टॉपिक है इसलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये फर्स्ट पॉज है, फिर उसके बाद हम सेकंड पॉज में चलते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट. हाउ टू रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मीन स्प्लिट अप अ फोर्स इनटू इट्स perpendicular components or simple components. तो चूंकि there are two components, x components and y components. Please understand the figure. Any force whose name is F, this is x and y axis, which makes some certain angle theta with x axis. O is the origin, A is vertex. From A draw perpendicular on x-axis which meet at point B. So this force resolve into two components. Those components which are along x-axis called x components, and those components which lies along y-axis called y components, and the components which are at right angle called rectangular. Those components which are at right angle called rectangular components.
तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एक तो इसकी डेफिनेशन, प्लीज मैं लिखूंगा नहीं आपको, सिर्फ मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा कि व्हेन अ फोर्स resolve into its components, or you can say that split up a force into its components, perpendicular components, mutual perpendicular, क्योंकि mutually perpendicular है ये, they are mutual mean साथ साथ है, इसलिए इसको they are mutually perpendicular. The second one is rectangular components. Rectangular components, ये अक्सर short answer आ जाता है. Those components which are at a right angle with each other. ये दो components हैं, x components and y components. They are at right angle with each other, called rectangular components. Now come to the point, how to resolve a force into its components. Two components are there. एक का नाम है horizontal components. How to find the horizontal components? By using a ratio of, second ratio, cos of theta. Cos of theta मैंने आपको याद कराया था, curly brown hair. Cos theta बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है इसकी? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट्स बेस, इट्स परपेंडिकुलर, इट्स हाइपोटेन्यूज. प्लीज रिमेंबर इट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा, बेस मीन ओ बी इन वेक्टर फॉर्म बाय ओ ए. हाउ टू फाइंड इट्स, कैलकुलेट इट्स वैल्यू, fx by f, by cross multiplied fx into 1, fx, f cos of theta. My dear students, ये आपका first part, how to find horizontal components and how to find vertical components by using a ratio of sine of theta. Some people have, okay, sine is a ratio of, people have perpendicular by hypotenuse. ये याद करने का आपको मैं मेथड जो बता रहा हूं, ये आपने याद रखना है. परपेंडिकुलर मीन, ये मैंने कहा था एंगल ऑपोजिट साइड कॉल्ड परपेंडिकुलर, बी ए बाय ओ ए हाइपोटेन्यूज. सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, BA mean FY, OA mean F. By cross multiplied, so you can find FY is equal to F sin of theta. My dear students, ये आपको आगे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, प्लीज इनकी वैल्यू याद रखिएगा. So in this way, एक्सप्लेनेशन आपको बताया था मैंने, बोर्ड पे नहीं लिखता, मैं सिर्फ आपको फिगर एक्सप्लेन करूंगा एक दफा. वंस अगेन, लेट अस कंसीडर अ फोर्स. अच्छा, इसका एक थोड़ा सा पार्ट आपको वेक्टर फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा जी? ओ ए इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू कंपोनेंट्स बी ए. तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, वेक्टर फॉर्म में. ठीक है, अगर वेक्टर एडिशन में आपको ये, चूंकि इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. एडिशन में क्या होता था? वेक्टर्स आर ऑलवेज एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स. ये टेल है, ये हेड है, इसके साथ अगला ज्वाइन हो गया, इसको आप, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी. ठीक है, तो ये तो ऐड हो गए, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया. लेकिन उस वक्त रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, लेकिन इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. इसमें वेक्टर इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स. एफ वेक्टर है इन अ फॉर्म ऑफ फोर्स, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कंपोनेंट्स में. तो एफ के कंपोनेंट्स क्या हो गए? एफ एक्स एंड एफ वाई. तो ये कंपोनेंट्स फॉर्म में. इसका तीसरा मरला, ओके, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. क्या से फोर्स का बन गए? बाय यूजिंग पैथागोरस. पैथागोरस आपने बेटा 8 में पढ़ा है. ठीक है, पैथागोरस थ्योरम, इट्स अ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. तो हाइपोटेन्यूज आपके सामने है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओ ए की जगह एफ, एफ एक्स, एफ वाई. तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट इसकी रिमूव करेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है. ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास
मैग्नीट्यूड आ गई है। एक पॉइंट इसका रह गया ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फॉर डायरेक्शन, ये सारे बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूं। फॉर डायरेक्शन के लिए हमारे पास थर्ड रेशो रह गई थी टेंजेंट थीटा। उसके लिए टेन थीटा रेशो लेंगे विच इज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। वही सेंटेंस, सम पीपल हैव करली ब्राउन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर बाय बेस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे BA, बेस क्या है OB। तो यहां से जब आप टेन इनवर्स का, इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब जब इनवर्स लेंगे तो यहां से सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो टेन इनवर्स BA को हम लिख सकते हैं FY, इसको हम FY लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं FY बाय FX। तो जब इसको कहते हैं थीटा इज एंगल 1 2 3, ये 1 2 3 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैक्ट कंप्रीहेंसिव टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और हाउ यू कैन से दैट अ फोर्स रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो स्प्लिट कर देता है जो फोर्स को कंपोनेंट्स में by mutually perpendicular components में, this is called resolution of force। तो यहां से different definition आ गई। horizontal components, those components which lies along x axis, इसको x components भी कहते हैं, other name is x components। vertical components का other name y components। तो my dear student, in this way you should find horizontal components, vertical components, magnitude and direction। ये चारों चीजें आपने कंप्रीहेंसिव फॉर्म में आपने कैलकुलेट करनी है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।